Welcome to the second part of the chapter life processes, that is nutrition in animals. Okay. So basically animals की three categories होती हैं, herbivorous, carnivorous and omnivorous. We would be discussing them in detail one by one. First is herbivorous. They are basically the plant eaters. Okay, for example, goat, deer, horse, they all come under this category. So then we have carnivores. So we can define them which eat only other animals. Okay, so basically they are animal eaters. Okay, for example, lion, tiger, etc. Then we have omnivores, means which eat animals as well as plant. Okay, for example, humans. Welcome to the best example. Whereas dog, cat, glucose to we have all come under during the respiration. Third is respiration in plants occur which are involved in nutrition in animals. ठीक है, that is 5 steps are there. First is ingestion, which means process of taking food inside the body is your ingestion. Digestion मतलब जो फूड हमने इनटेक किया है अभी वो लार्ज पार्टिकल्स में या लार्ज सॉल्युबल पार्ट में, तो उसको बहुत स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देना ताकि वो हमारी बॉडी के लिए इजीली एब्जॉर्ब हो पाए, उसे हम डाइजेशन बोलेंगे. ठीक है. एब्जॉर्प्शन मतलब द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into the bloodstream. Okay, this is your absorption. Assimilation means the absorbed food by our body is taken to the cells and is used for energy, growth and repair whenever required. Okay, then we have the last step, that is your egestion. Means जो undigested food होता है जो कि हमारी body consume नहीं कर पाती है is removed from our body through the process of egestion. So now let's move further. Okay, nutrition in amoeba. So here also 5 steps takes place. First is ingestion. Now since amoeba does not have a particular mouth to intake the food, so it has pseudopodia, okay, which helps in taking the food inside the amoeba. Now then comes your digestion, that is food is digested in food vacuole. तो ये एक important point है कि food vacuole में amoeba का food digest होता है by the digestive enzymes. ठीक है. फिर absorption के केस में क्या होता है कि जो digested food है in the food vacuole वो directly absorb होता है into the cytoplasm by the process of diffusion. So now further we have assimilation. Assimilation means a part of food is absorbed in amoeba cell और वो directly use होता है to obtain energy with the process of respiration. Okay, then we have egestion. Now since amoeba does not have a fixed place for the removing, so क्या होता है जो undigested part of food होता है वो कैसे removed out होता है, तो इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि क्या करती है किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके रपर्चर कर लेती है, मतलब घेरा सा बना लेती है अचानक, और जो उस अनडाइजेस्टेड फूड को फटाफट उसकी बॉडी से थ्रो आउट कर लेती है. ठीक है, दैट इज वो उसे फेंक देती है. सो दिस वाज अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा. सिमिलरली पैरामीशियम भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉल्ड सीलिया. तो वो क्या करता है, वो भी फूड वाटर सा लेता है और फटाफट अपने माउथ में डाल देता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया. ओके, सिमिलर केस हैपेंस विद इट. नाउ फर्दर लेट्स गो टू न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. सो बेसिकली इंजेशन, हाउ इट्स टेक्स प्लेस. ह्यूमन फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ. तो जब हम अपना फूड इनटेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स, उससे हम इंजेशन बोलते हैं. डाइजेशन मीन्स अब ह्यूमंस जैसे ही अपना फूड माउथ में रखते हैं या जैसे ही उसे ईट करते हैं उसी टाइम डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में. सो अब क्या होता है, जैसे हम अपना फूड रखते हैं माउथ में, तो माउथ के अंदर ऑलरेडी टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो माउथ को ही हम बकल कैविटी भी बोलते हैं. सो जो टीथ क्या होती हैं, टीथ कट करती हैं फूड इनटू स्मॉलर पीसेस जो कि हमें फिजिकल डाइजेशन में हेल्प आउट करती हैं. जो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में वो हेल्प करता है इन केमिकल डाइजेशन. हाउ? बाय सिक्रीटिंग एंजाइम्स.
दैट इज सलाइवा। तो जो हमारा टंग होता है वो क्या करता है, हमारा टंग उस सलाइवा को हमारे फूड के साथ मिक्स होने में हेल्प करता है ताकि वो वाटरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ओके, सो बेसिकली वी कैन से इज, अब फर्दर क्या होता है, फूड स्लाइटली डाइजेस्ट हो रखा होता है इस टाइम पे, तो अब क्या करता है वो ओएसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, उसके थ्रू पास होता है और स्टमक में जाता है। तो स्टमक बेसिकली हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ये एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो द वॉल्स ऑफ फूड पाइप हैव मसल्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपैंड होती है द मसल ऑल्टरनेटिवली, जिसकी हेल्प से फूड हमारा डाउनवर्ड जाता है। ओके, और इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, विच पुशेस द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन ऑल द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स थ्रू आउट द एलिमेंटरी कैनाल। नाउ फर्दर व्हाट हैपेंस, स्टमक हमारा जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा चर्न्ड फूड है जो टीथ से होकर आ रहा है वो 3 आवर्स के लिए स्टोर होता है। तो इस 3 आवर्स में वो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ स्टोर हो रहा होता है, बट ड्यूरिंग दिस टाइम फूड और स्टिल स्मॉलर स्पीसीज में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनाता है। अब स्टमक के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल्स, जो कि क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करते हैं। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर ऑलरेडी 3 सब्सटेंसेस कंटेन्ड होते हैं, दैट इज योर HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब इन तीनों के अपने अपने फंक्शन है। सबसे पहले HCl एक्ट करता है, दैट इज वो क्या करता है, जो मीडियम होता है गैस्ट्रिक जूस का उसे एसिडिक बनाता है, ताकि जो पेप्सिन है, जो सेकंड गैस्ट्रिक जूस है पेप्सिन, वो उस पर इजिली एक्ट कर सके और उससे प्रोटीन को इजिली डाइजेस्ट कर सके। ओके, सेकंड काम HCl का क्या होता है, ये किल करता है बैक्टीरिया को जो कि हमारे स्टमक में आ जाते हैं अलोंग विद द फूड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, इट बिगिंस द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो इधर पे मेन काम पेप्सिन का ही होता है, बेसिकली तीनों का मेन होता है, बट पेप्सिन ही वो गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि फूड को स्टिल स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करता है। ओके, एक नोट पॉइंट है इसके लिए कि यह तभी एक्टिवेट होगा जब HCl प्रेजेंट होगा, या फिर वी कैन से जब एक एसिड प्रेजेंट होगा। नाउ फंक्शन ऑफ म्यूकस क्या होता है, ये हेल्प करता है हमारे स्टमक को HCl से बचाने के लिए। एज यू नो HCl हार्मफुल एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये हमारे स्टमक को डैमेज कर सकता है। इसीलिए म्यूकस का काम क्या होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है हमें थ्रू द HCl। ओके, नाउ आई हैव शोन अ डायग्राम, रिकमेंड दिस डायग्राम, इसे बनाना है, ठीक है, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो राइट ऑल दीज थिंग्स। ओके, so look this image or diagram very carefully and learn it by heart. Okay, functions भी आते हैं कभी कभार इस पे बेस्ड, ठीक है। अब फर्दर देखते हैं फर्दर क्या होता है। एक स्पिंक्चर मसल होती है, ठीक है, वो क्या करती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उधर तक फूड को पहुंचाने में हेल्प करती है, कहाँ से, स्टमक से। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हुआ, वो एक लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कि 6.5 मीटर्स लॉन्ग होती है इन एन अडल्ट मैन। ये बहुत नैरो होती है शेप में, ठीक है, जिधर पे कंप्लीट डाइजेशन होता है ऑफ द फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये लास्ट साइट होती है, ठीक है। सो ये अलग अलग एनिमल्स में डिफर करती है इसका साइज, ठीक है, बिकॉज सम आर प्लांट ईटर्स, सम आर मीट ईटर्स, सो ये डिफर करती है। Now, small intestine receives the secretion of 2 glands, ठीक है, that is liver and pancreas। तो liver क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है, ठीक है। बाइल जूस क्या हुआ, वो एक ग्रीन इन येलो कलर का होता है, ग्रीनिश येलो वी कैन से दैट, जो कि लिवर में प्रेजेंट होता है, विच इज नॉर्मली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ओके, it performs 2 functions, that is it makes the acidic food again alkaline so that pancreatic enzymes can act upon it। अब एक नोट पॉइंट क्या है कि जब हम गैस्ट्रिक जूसेस में आते हैं, जो पेप्सिन होता है वो कब एक्ट करता है, वो तभी एक्ट करता है जब फूड एसिडिक हो। लेकिन इस केस में क्या होता है, पैनक्रियाज कब एक्ट करता है, जब फूड अल्कलाइन हो। तो लिवर का काम क्या होता है कि वो एसिडिक फूड को अगेन अल्कलाइन बना दे, ठीक है। सेकेंड फंक्शन क्या होता है, जो इट ब्रेक्स द फैट प्रेजेंट इन द फूड इनटू
small globules making it easy for enzyme to act and digest them. ठीक है. Now let's discuss pancreas function. ये क्या होती है? एक large gland होती है जो कि lie करती है parallel to and beneath the stomach, means almost stomach के आसपास ही होती है. इसके खुद के digestive enzymes होते हैं, ये भी 3 होते हैं, अमाइलेज, ट्राइपेस, लाइपेस. अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है. ट्राइपेस क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. लाइपेस क्या करता है? इट ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स. तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सो बेसिकली इस टॉपिक में आपको फंक्शंस पूछे जा सकते हैं कि मतलब मेन तो उसी में आता है गैस्ट्रिक जूसेस के फंक्शंस डिस्कस करो. इनफैक्ट पैनक्रियाज के भी पूछ लेते हैं 1 वर्ड या 2 वर्ड में, बट मेन इज योर गैस्ट्रिक जूस. सो द थिंग इज यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक. ओके, लेट्स नाउ मूव फर्दर. अब एक सेकेंड पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है कि द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सिक्रीट्स द इंटेस्टाइनल जूस. अब इंटेस्टाइनल जूस क्या कंटेन करता है? नंबर ऑफ एंजाइम which complete the digestion of complex carbohydrates into glucose and proteins into amino acid or fat into fatty acid. तो intestinal juice का काम ये होता है. Okay, now let's move further. That is your absorption. ठीक है. Main region for the absorption of digested food in humans is your small intestine. Assimilation पता ही है आपको, energy obtain करता है for the growth and repair of the body. देन वी हैव इजेशन, हमारे पास तो इजेक्ट करने के लिए प्लेस है. ओके, सो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड पासिस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन. अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? विच एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड विद द हेल्प ऑफ विली. इसका फंक्शन देखना विली का. ओके, नाउ ड्यू टू दिस जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड है इट बिकम्स ऑलमोस्ट सॉलिड. That is the last part of the large intestine जिसे हम rectum कहते हैं. It stores this for the some time until you go to toilet. Okay, so this was all about human digestive system. Please mark it. I am again and again repeating it. That learn it by heart. समझ लो, लिख अपने words में लेना. Okay, last topic for this part is your dental plug. आता नहीं है बट पता होना चाहिए कि अगर आप अपने टीथ को रेगुलरली क्लीन नहीं करोगे तो वो क्या होते हैं? वो अपने आप को कवर कर लेते हैं विद अ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया सेल्स. तो जिसके वजह से दांत हमारा खराब हो जाता है या सड़ जाता है. ठीक है, ब्लैकिशमन भी आ जाता है कभी कभार, जिसे लोग कीड़ा वगैरह बोलते हैं. तो इन्हीं सब चीज़ों को हम डेंटल प्लॉग करते हैं. ओके, थैंक यू.